Yes. Hello friends. Good morning. After a continuous follow by Hindi speaking students for the recorded sessions of spoken English, finally I am here to serve you people with the recorded course of spoken English. So my dear students, throughout our course we will be studying so many minute things. About the English language. So I want to tell you, be very confident and please do whatever I will ask you to do, irrespective of your age, your educational qualification. Please focus on the things whatever I will be asking you to do, because for last more than 20 years, that is around 4 years of experience within this big and what you can say long term time span, I have come across with various people, like by nature, by educational qualification, by your age groups. So whatever your age is, whatever your educational qualification is, whatever your profession is, now you all people are into nursery standards, KG standards, जहाँ पर बच्चा बोलता है टीचर ने बोला है तो ऐसे करना है. Please have that kind of mindset, and with such mindset you will be enjoying the fruits of spoken English language. Fine. So students, as we always discuss about the base, see, for example, if we want to construct a building, we need to have pillars as the base. First, we prepare the structure of the building, and then with the help of bricks and cement and sand, we construct the walls of the building. But pillars play very, very important role in the construction of the building. In the same manner, in the language also, we have 6 basic pillars of English. We have, which I have named them as, you can see on the board. These 6 basic pillars are personal pronouns, demonstrative pronouns, then next is verbs. In verbs, we have helping verbs and main verbs. Number 4 is your preposition, next one is your WH words and the time phrases. These are very, very important basic pillars of English. So without wasting our time, I would love to go ahead with these 6 basic pillars. Out of these 6 basic pillars, I want to move ahead with first pillar, that is personal pronouns. This first pillar, personal pronoun, we study in 3 classes: subjective case, objective case and possessive case. Subjective case, for example, यदि मैं है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मेरा, मुझे होगा, एंड देन सब पॉजिटिव केस होगा मेरा.
मैं, फॉर एग्जांपल मैं, मुझे और मेरा, ठीक है। सो आई, मी, माय और माइन, इस तरह से these cases we will study, and all these cases we will study in our personal pronouns. So out of these we are going to study the first one, that is possessive, that is subjective case. So in this we will see मैं को क्या बोलते हैं, हम को क्या बोलते हैं, तू तुमको क्या बोलते हैं, तू किसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस थिंग्स विल स्टडी हेयर. सो मैं का एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, मैं का कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ही नहीं. दैट इज़ वाई वी स्टडी इट एज मैं. इसको इंग्लिश में हम लोग आई बोलते हैं. हमको भी कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, हमको वी बोलते हैं. हाँ, तू और तुमको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, एक वचन, अपने से छोटा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, इसको इंग्लिश में यू बोलते हैं. अपने से बड़ा है तो उसको तू नहीं बोला जाता ना, एम आई राइट. ऑफ कोर्स छोटा भी है तो उसको तुम या आप बोलो तो और भी अच्छा होगा, देन आप दो कैटेगरी में मैंने लिखा है, एक वचन के लिए, एक बहुवचन के लिए. सो आप जो पहला वाला है एक वचन का है, बड़ों को हम लोग आप बोलते हैं, इसलिए बड़ा पहले लिखा है. ऑफ कोर्स छोटों को तुम. तू किसको बोलते हैं, बहुत ही नज़दीक होगा तो, नज़दीकी रिलेशन होगा तो ही तुम बोला जाता है. अदरवाइज तुम इज़ द बेस्ट वर्ड टू बी यूज फॉर अपने से छोटे जो भी है, यंगर वंस. सो तुम, और उससे भी अच्छा है सबको आप बोलोगे तो और भी अच्छा है. चलो छोड़ो इसको. तुमको, तू को भी और तुमको भी यू बोलते हैं, आपको भी यू बोलते हैं, और ये बहुवचन होगा तो भी यू बोलते हैं. दैट इज़ आवर मेन फोकस. लेकिन ये आप क्या है, एक वचन, अपने से बड़ा या अपने से छोटा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, कोई भी हो सकता है. इसको मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में यू बोलते हैं. देन अगला वाला आप है बहुवचन वाला, और यदि सामने वाले आपसे छोटे हैं तो तुम लोग भी बोल सकते हो, लेकिन बेटर है आप. चलो इसको क्या यूज़ करना है वो आपका परसेप्शन है. लेकिन ये बहुवचन होगा तो किसके लिए यूज़ करते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, आप या तुम ही बोला जाता है. सो ज़्यादा लोग आपके सामने हैं तो उसको आप तू नहीं बोलते हो ना. सो किसके लिए यूज़ करते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, और इसको भी इंग्लिश में यू बोला जाता है. व्हाट आई मीन टू से, यू किसको किसको बोला जाता है, आपसे छोटा है तो भी यू, आपसे बड़ा है सिंगुलर तो भी यू, और बहुत ज़्यादा है, आपसे छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी को यू ही बोला जाता है. आफ्टर दिस मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा आपका रीजन के अनुसार अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन जितना मैंने हिंदी स्पीकिंग लोगों से डिस्कस किया है उसके आधार पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ. सो सपोज़ वह, थर्ड पर्सन के लिए हम लोग बोलते हैं वह, और वो नज़दीक होगा तो बोलते हैं यह, वह या यह. नज़दीक होगा, दूर होगा तो वह, नज़दीक होगा तो यह बोलेंगे. अभी यदि आपसे बड़ा है तो हम लोग जनरली वे बोलते हैं, और हमसे बड़ा है तो हम लोग जनरली उसको ये बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यह मेरे पापा है की जगह ये मेरे पापा है, वह मेरे पापा है की जगह वे मेरे पापा है, ऐसा जनरली बोला जाता है. कोई कोई बोलता है कि यह, वह और यह हम लोग वे और ये की जगह इस्तेमाल करते हैं. व्हाटएवर आपके रीजनल लैंग्वेज के अनुसार आप यूज़ कर सकते हो. सो ये दिस इज़ फॉर वह या वे दूर वालों के लिए, ये नज़दीक वालों के लिए, ये छोटों के लिए, और ये बड़ों के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो ये सब किसके लिए यूज़ होता है, ऑफ कोर्स सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए. ओनली पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है. किसके लिए यूज़ होता है, ओनली पुरुष के लिए, एक वचन, और आपसे बड़ा या छोटा, आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ओनली पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है. इसको इंग्लिश में ही बोला जाता है. इन द सेम मैनर, वह मेरी छोटी बहन है, यह मेरी छोटी बहन है, वे हमारी प्रिंसिपल है
या नज़दीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल है। इस तरह से फिर वही दूर के लिए ये लाइन है, नज़दीक के लिए ये लाइन है, छोटों के लिए ये लाइन है, बड़ों के लिए ये लाइन है। ठीक है, ये किसके लिए है? ऑफ कोर्स एक वचन। आपसे छोटों के लिए कौन सी लाइन है? ये लाइन है, वो है यही है। और आपसे बड़ों के लिए ये अगला वाला। सो दिस इज़ फॉर बड़े, दिस इज़ फॉर छोटे। बड़ों के लिए ए, छोटों के लिए ए। और किसके लिए? ऑफ कोर्स स्त्रीलिंग के लिए। इसको इंग्लिश में शी बोला जाता है। ऑल राइट, देन हम लोग आगे चलते हैं। यह या वह, ये किसके लिए बोलते हैं हम लोग? सिर्फ एक वचन जो नहीं बोलता है, नहीं या न बोलने वाले, न बोलने वाले, न बोलने वालों के लिए यूज़ करते हैं। और क्या होगा वो? या तो सजीव होगा या फिर निर्जीव होगा। इवन छोटे बालक को भी हम लोग यही यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल और इट इज़ वेरी क्यूट बेबी। सो जो नहीं बोलता है उसको सबको, जब तक उसका वेदर इट इज़ ही और शी, जब तक उसका मेल है या फीमेल है ये क्लासिफिकेशन नहीं होता, उसको ईट ही बोलते हैं। वैसे पेड़ को कोई पेड़ मेल नहीं है, फीमेल नहीं, इसलिए ईट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल और दूसरा चीज़, सारे प्राणियों के लिए, सिंगुलर के लिए सबको ईट बोलते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऑल राइट, देन ये या वे, इनके ये किसके लिए होता है? बहुवचन के लिए। अनेक वचन बोलो चाहे बहुवचन बोलो, जनरली मैं बोलता हूँ ये ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं दे। एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, इट का फ्रेंडशिप है दिस से, इट का फ्रेंडशिप है दिस से, और दे का फ्रेंडशिप है दोज से। ये दोनों एक दूसरे से उल्टा है, लेकिन इसका दूर का मीनिंग दैट भी है और इसका दूर का मीनिंग दीज भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बट इट इज़ ईजिली इंटरचेंजेबल विथ दिस, वेर एज दे इज़ ईजिली इंटरचेंजेबल विथ दोज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में पेन है, ये दिस इज़ माई पेन, सो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ पेन। दूर भी है तो भी ऐसा पॉइंट करके बोल सकता हूँ इट इज़ पेन, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं दूर के लिए दैट इज़ पेन, और नज़दीक के लिए या तो दिस इज़ पेन और इट इज़ पेन। दोनों में से कुछ भी इजीली इंटरचेंजेबल है। ऑल राइट, इन द सेम मैनर, लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग बोलेंगे दे आर माय फ्रेंड्स, और नज़दीक भी है तो भी उसको हम लोग दे आर माय फ्रेंड्स बोल सकते हैं, लेकिन नज़दीक हम लोग प्रेफर करते हैं दीज आर माय फ्रेंड्स, और दूर है तो हम लोग इजीली इंटरचेंज करते हैं या तो दे या तो दोज। सो दे और दोज में हम लोग इजीली इंटरचेंज कर सकते हैं, सो दे का रिलेशन मैंने दोज से जोड़ा है, लेकिन दे कैन बी इक्वली यूज्ड विथ दीज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई फ्रेंड्स और दे आर माई फ्रेंड्स, नज़दीक भी है तो भी आप दे आर माई फ्रेंड्स बोल सकते हो। ऑल राइट, लेकिन हम लोग दीज बोलना पसंद करते हैं, वेर एज दूर है तो दोज और दे इजीली हम लोग एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अभी ऑब्जेक्टिव केस, इसका मैं थोड़ा सा जस्ट आपको लिख के बताऊंगा, इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे सब्जेक्टिव केस का एक्सप्लेनेशन है, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा। चेंज क्या होगा? यहाँ चेंज होगा और इसके मीनिंग भी चेंज होगा। प्लीज़ इसको फास्ट लिखिए, और मैं चाहता हूँ कि इसके चार्ट्स जो है ना आप लोग आपके घर में लगा लीजिए, तीनों भी पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, और सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, तीनों का जो भी चार्ट्स है आपके घर में लगा लीजिए। और बाकी जो 2 बचे हुए उसका मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, चैट बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिलेगा। सो यूजिंग दैट लिंक you can see the
ऑब्जेक्टिव केस एज वेल एज पॉजिटिव केस। इसको लिख लीजिए फास्ट प्लीज। से माय डियर फ्रेंड्स, इसके हेल्प लेकर के मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस दोनों भी एक्सप्लेन करता हूं। ऑब्जेक्टिव केस में सपोज आई वांट टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में यहां मुझे, यहां हमें होगा। सो मुझे मतलब होगा मी, हमें हो मतलब होगा अस, हमें मतलब होगा अस। और यहां होगा तुझे या तुम्हें, आपको, या पर तुम्हें या आपको। ये होगा उसे या उन्हें, यहाँ पर भी होगा उसे या उन्हें या उनको बोला जाएगा। यहाँ पर उसे बिकॉज ये तो इट के लिए हैं और यहाँ उन्हें हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर होगा आपका यू, यहाँ पर भी यू ही होगा, यहाँ पर भी यू ही होगा, यहाँ पर होगा हिम, यहाँ पर होगा ही, सॉरी हर, यहाँ पर होगा इट, और यहाँ पर होगा देम। अभी इसकी सहायता लेकर, इसी की सहायता से हम लोग वी कैन गो अहेड विथ द नेक्स्ट केस दैट इज पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस को भी, इसको एक बार देख लीजिए शांति से, एंड देन हम लोग आगे जाएंगे पॉजिटिव केस में। सो पॉजिटिव केस में भी सिर्फ आपको ओरली बताता हूँ फटाफट फास्ट। पॉजिटिव केस में क्या होगा, मुझे की जगह होगा मेरा। बस आप लिख लीजिए, मैं लिखता नहीं हूँ, आप लिख लीजिए अभी इसको। मुझे की जगह होगा मेरा और हमें की जगह होगा हमारा। सो मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, आपका। यहाँ भी आपका बोल सकते हो, ना, छोटों के लिए भी आपका बोल सकते हो, सॉरी एक वचन के लिए भी आपका बोल सकते हो, बहुवचन के लिए भी आपका बोल सकते हो। यहाँ उनका, यहाँ उनका, यहाँ उनका या उसका, यहाँ उसका और यहाँ उनका। ठीक है। सो इंग्लिश में इसका हो जाएगा, मेरा को हो जाएगा माय या माइन, हमारा को हो जाएगा आवर, देन तेरा या तुम्हारा, आपका, आपका को हो जाएगा योर, देन यहाँ पर हो जाएगा उसका या उनका, छोटे के लिए उसका, बड़ों के लिए उनका। यहाँ हो जाएगा हिज, यहाँ हर ही रहेगा या हर्ष होगा, हर या हर्ष। सो उसका छोटे लड़कियों के लिए, बड़े लेडीज़ के लिए उनका बोल सकते हैं। यहाँ हर या हर्ष हो जाएगा। यहाँ पर न बोलने वाला उसको बोलेंगे उसका, सो यहाँ हो जाएगा इट्स, और यहाँ उनका, यहाँ हो जाएगा देयर। इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस में था देम और सब्जेक्टिव केस में था दे। सो दे, देम और देयर। यहाँ पर क्या है, आई, मी, माय और माइन, वी, अस, आवर, यू, योर, योर। यहाँ हो जाएगा ही, हिम, हिज। यहाँ हो जाएगा शी, हर और हर्ष। यहाँ हो जाएगा इट, इट्स। यहाँ हो जाएगा दे, देम, देयर। इस तरह से आप प्रॉपरली चार्ट्स बनाओ, उसको डिस्प्ले करो, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पिलर ऑफ इंग्लिश। व्हाट आई कैन से इज फर्स्ट बेसिक पिलर ऑफ इंग्लिश। इसको पढ़ लीजिए। सो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्रू आउट द स्पोकन लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको जान लोगे तो यूज़ करने के लिए बड़ी आसानी आपको हो जाएगी।
All right. Now, having completed this, I would love to go ahead with your demonstrative pronoun. Again, very 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 important part. इतना आसान है कि हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, लेकिन based on my experience I have seen majority of the people, majority of the students, so कितना भी highly qualified है, पता नहीं इनको this और that में क्या दिक्कत होती है, इसलिए I am forced to teach this. यह सिंपल है, वेरी सिंपल. यह मतलब this सिंगुलर. ये नज़दीक है और प्लूरल है, सो इट इज़ these. वह दूर है, सिंगुलर है, that. और वे, दिस इज डेमोन्स्ट्रेट, टू डेमोन्स्ट्रेट, दिखाने के लिए, दर्शक सर्वनाम बोलते हैं इसको. दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नंबर 2 पिलर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. हार्डली 1 मिनट का टॉपिक है. वे यानी दोज. अभी इनका सबका पिताजी है एक अपने पास, सो उसका सारा का सारा मीनिंग है. यह भी होता है उसका मीनिंग, ये भी होता है, वह भी होता है, और वे भी होता है. व्हाट आई मीन टू से, क्या क्या होता है, दिस भी होता है, दैट, दिस. फॉर एग्जाम्पल इधर लिखता हूँ, सो दिस, ओके, दिस, दिस, दैट, दोज. और सबका मीनिंग है द. इन सबका मीनिंग है द. कैसे, मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ. सपोज आपके टीचर हैं, एक टीचर हैं, स्कूल में आप लोग हो, और टीचर बोल रहे हैं कि टेक दिस बॉय टू दैट टीम, टेक दिस स्टूडेंट टू दैट टीम. सो दिस स्टूडेंट, दैट टीम, टेक द स्टूडेंट टू दैट टीम. या फिर यह पेन ले लो, टेक दिस पेन, और टेक द पेन. वहाँ पर पेन रखा हुआ है दूर, गिव मी दैट पेन और गिव मी द पेन. यह भी हो गया, वह भी हो गया. इन स्टूडेंट्स को ग्राउंड पे ले जाओ, टेक दीज स्टूडेंट्स टू प्ले ग्राउंड. और कॉल आउटसाइड स्टूडेंट्स टू इनटू द क्लास. सो कॉल दो स्टूडेंट्स टू द क्लासरूम. सो दो स्टूडेंट्स की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कॉल द स्टूडेंट्स टू द क्लासरूम. मतलब दिस की जगह द यूज कर सकता हूँ, दैट की जगह द यूज कर सकता हूँ, दीज की जगह भी द यूज कर सकता हूँ, और दोज की जगह भी द यूज कर सकता हूँ. सो इस कॉन्सेप्ट को जान लो तो आपको द का यूज करने में बड़ी आसानी हो जाएगी. सो द के कितने मतलब हो गए, 4 मीनिंग्स हो गए द के. ऑल राइट. सो कौन से दिस, दैट, दीज, दोज, और वी कैन से दिस, दीज, दैट, दोज. प्लीज राइट डाउन फास्ट and we will move ahead with the next pillar, that is verbs. Again, very very important pillar. So friends, I think you have enjoyed this session. We will study the next pillar, that is verbs, including helping verbs and main verbs. What I mean to say, verbs as a single pillar we will study in the separate lecture. Till then, please enjoy with your personal pronouns, subjective case, objective case, and possessive case, as well as demonstrative pronoun. Please be clear with these concepts, and we will meet in the next lecture. But before that, I want you to have proper repetitions of these taught concepts. हर चीज़ को इतना माइन्यूटली देख लो ताकि आप कभी इसको डबल देखने का ज़रूरत ना पड़े आपको.
कंसिडरिंग दैट और हैविंग द माइंडसेट ऑफ नर्सरी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ एक्टिंग करनी पड़ेगी, हम लोग नर्सरी क्लास में है या केजी क्लासेस में है, किंडर गार्डन्स में है, सो व्हाट आई मीन टू से, यदि हाँ आपका माइंडसेट उस तरह का होगा तो आप उतना ही इंटरेस्ट से पढ़ाई करोगे। यदि आप सोचोगे हाँ मैं तो आई एम एन इंजीनियर, आई एम लॉयर, और लाइकवाइज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम प्रोफेशनल, आई हैव दिस काइंड ऑफ बिग क्वालिफिकेशन, तो पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। सो ये सब आभूषण आपके निकाल दो साइड में, आप छोटे बन जाओ और येड़ा बन के पेड़ा खाओ, मराठी में इन स्टीव जॉब्स लैंग्वेज, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। सो विशिंग ऑल द बेस्ट, let us take a pause here and we'll meet in the next lecture, my dear friends. Thank you, take care and goodbye.